So let's solve next question. Ninth question. This is again from JEE Main 2019. A parallel plate capacitor is of area 6 centimeter square and a separation 3 mm. तो आपको पैरेलल प्लेट कैपेसिटर दिया है जिसका एरिया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर है और separation between the plates मतलब D is 3 mm. The gap is filled with 3 dielectric materials of equal thickness. So as you can see, equal thickness मतलब A by 3 area is covered by first, A by 3 is covered by second, and A by 3 is covered by third material. क्योंकि टोटल एरिया प्लेट एरिया ए था और इक्वल थिकनेस बोला है मतलब ए बाई 3 पहले का, ए बाई 3 दूसरे का, ए बाई 3 तीसरे का एरिया होगा with dielectric constant K1 10, K2 12 and K3 14. This is 14. Okay, this has to be 14. All right, then the dielectric constant of the material which when fully inserted in the above capacitor gives same capacitance, same not some, same capacitance would be. तो आपको ऐसा बोला है कि अगर हमने ये तीनों डाइलेक्ट्रिक की जगह पे एक सिंगल डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाला होता, ओके राइट, तो उस पर्टिकुलर डाइलेक्ट्रिक का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होता? क्वेश्चन इज सिंपल. ओके, सबसे पहले यू नीड टू आइडेंटिफाई, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि इफ दिस थ्री कैपेसिटर्स आर इन सीरीज or if these three capacitors are in parallel. सबसे पहले you need to know what is general formula of capacitance. Capacitance का general formula आपके पास आता है K dielectric constant A epsilon 0 by D. Okay, जो पहला स्लैब है with K1 dielectric constant उसका कैपेसिटी आप लिखोगे C1 equal to K1 A1 epsilon 0 by D. D तो सबके सेम है इसलिए मैं D1 D2 D3 लिखूंगा नहीं. K value is 10, A is A by 3, epsilon 0 by D. C2 will be K2 A2 epsilon 0 by D. K2 is 12, this is A by 3, epsilon 0 by D. Similarly, C3 is K3 into A3 epsilon 0 by D. This is 14 A by 3 epsilon 0 by D. और आपको पता होना चाहिए कि ये जो कैपेसिटर्स है दे आर इन पैरेलल and C1, C2, C3 are in parallel and resultant is C1 plus C2 plus C3. So C1, C2 and C3 are in parallel. क्योंकि मैंने बताया था जब प्लेट्स का एरिया डिवाइड हो तो दोज कैपेसिटर्स आर इन पैरेलल. ओके, मतलब यू रिमेंबर कि ये दो प्लेट्स है, यहाँ पे एक कैपेसिटर है, यहाँ पे दूसरा, एक कांस्टेंट डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है, यहाँ पे दूसरा है, यहाँ पे तीसरा है. If you do not recall, मैं वापस बता देता हूँ. If you don't remember, that's okay. So if we have two plates of parallel plate capacitor like this, उसमें हमने अगर डाइलेक्ट्रिक स्लैब को कुछ ऐसा इंसर्ट किया है like this or something like this. Okay, so in this case capacitor C1 C2 they are in parallel. ये पता होना चाहिए. अगर आपने you can also insert dielectrics like this. So if you insert dielectric slabs parallel to the plates of capacitor, तो they are in series. तो ये बेसिक डिफरेंस आपको पता होना चाहिए. अब जो प्रीवियस क्वेश्चन मतलब ये जो क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें सिर्फ ओरिएंटेशन अलग दिखाया है, प्लेट्स को ऐसा बताया है और स्लैब्स को वर्टिकल बताया है. तो you should know okay this is a parallel combination. Okay, so therefore C parallel is C1 plus C2 plus C3.
तो आपके पास C1 C2 C3 की वैल्यू है. You have C1 as 10A epsilon 0 by D 3D plus C2 as 12A epsilon 0 by 3D and 14A epsilon 0 by 3D. So you will get A epsilon 0 by 3D common. 10 plus 12 plus 14, that is basically 36. So 36 A epsilon 0 by 3D. So this is 12 A epsilon 0 by D. अब आपको बोला है कि हमने इंस्टेड ऑफ यूजिंग 3 डाइलेक्ट्रिक स्लैब एक सिंगल स्लैब यूज किया हुआ था. तो what would have been the dielectric constant for the capacitance to be same? Now if, let's say, if a dielectric slab of constant K, of dielectric constant K, dielectric constant K is fully inserted, just a minute, dielectric constant K is fully inserted, so in this case you should know that C dash is K A epsilon 0 by D. यहाँ पे आप a/3 की बात मत करना. क्यों a/3 की बात नहीं होगी? बिकॉज इट इज क्लियरली सेड कि अभी दोनों प्लेट्स के बीच में एक सिंगल स्लैब है. देयर इज अ सिंगल स्लैब. ओके, सो यू हैव अ सिंगल स्लैब हियर with dielectric constant K. So you need to know this, right? Now, according to the question, okay, but given condition is, मैं थोड़ा इंटेंशनली स्लो जा रहा हूं. गिवन कंडीशन आपको दिया हुआ है कि जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है दिस इज इक्वल टू C डैश, मतलब जब आप सिंगल डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट करोगे तब का. CP आपने फाइंड किया, इफ आई एम नॉट रॉन्ग इट इज 12A epsilon 0 by D, 12A epsilon 0 by D. CK आपने लिखा KA epsilon 0 by D. तो A epsilon 0 by D, A epsilon 0 by D कैंसल, तो K की वैल्यू 12 होनी चाहिए. तो you should get value as 12, that is option number C. The question was extremely simple. Okay, then next question. In the figure shown below, the charge on the left plate of 10 microfarad capacitor is minus 30 microcoulomb. The charge on the right plate of 6 microfarad capacitor is. So what you should know to solve this question is, देखो the idea is very simple. अब यहाँ जो आपके पास 10 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर है उसके जो लेफ्ट प्लेट है उस पर -30 माइक्रोकूलम है. सो दिस -30 माइक्रोकूलम, ओके, लेफ्ट प्लेट पे. तो राइट प्लेट पे +30 आएगा. दिस इज बाय लॉजिक. ओके, सो राइट प्लेट पे +30 आएगा. नाउ अगर मैं इन दोनों का इक्विवेलेंट फाइंड कर लेता हूं, सो दिस इज सीरीज, दिस टू आर इन सीरीज, तो इसका सीरीज इक्विवेलेंट फाइंड कर लेंगे. तो यू विल हैव 1 2 and 3. तो व्हाट यू कैन गेट इज, यहाँ एक कैपेसिटर होगा, ओके. नाउ मैं क्यों कर रहा हूं, क्योंकि हमको क्या पता है, अगर हमारे पास n कैपेसिटर्स है इन सीरीज तो हर एक सीरीज कैपेसिटर पे सेम चार्ज होता है, इसलिए मैं पहले इक्विवेलेंट फाइंड कर रहा हूं. एंड यू ऑलरेडी नो, व्हाट डू यू नो इज, सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए 1/CS इक्वल टू 1/6 प्लस 1/4. ये माइक्रोफैराड में रखेंगे हम लोग. तो दिस इज
1 upon CS equal to 4 plus 6 is 10 upon 24. 6 into 4 is 24. तो CS is 24 by 10. 24 by 10 मतलब 2.4. ओके, तो ये आपका आ जाएगा 2.4 माइक्रोफैरड. So this is 2.4 microfarad capacity. This is 10 microfarad capacity and this is 2 microfarad capacity. Now इससे क्या होगा? The idea is very simple. अगर आप इसको सीरीज कॉम्बिनेशन नहीं भी निकालते तो भी चलता. क्यों? अगर मैं नहीं निकालता हूं तो सिर्फ मैंने क्यों बताया, फिर मैंने इसलिए बताया so that you know, अगर यहाँ पे -30 है तो यहाँ पे +30 है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में जो पहला प्लेट है, मतलब 2.4 का जो लेफ्ट साइड का प्लेट है, वहां पे -30 आएगा, फिर यहाँ पे +30 आएगा, फिर यहाँ पे -30 आएगा, फिर यहाँ पे +30 आएगा. सो जस्ट टू शो यू दैट दिस इज हाउ चार्जेस आर देयर इन सीरीज कॉम्बिनेशन. हमको जरूरत नहीं थी वैसे. क्यों जरूरत नहीं थी? क्योंकि चार्ज कंजर्वेशन यू हैव लर्नड, यू नो व्हाट इज चार्ज कंजर्वेशन रूल, और चार्ज कंजर्वेशन रूल के हिसाब से आप सॉल्व कर सकते हो, या फिर यू कैन ऑल्सो सॉल्व डायरेक्टली बाय लॉजिक. इफ यू रिमेंबर, capacitance is charge by potential difference. If you remember this, okay? तो इसका मतलब C is proportional to Q. अब जो सीरीज कॉम्बिनेशन में आपके पास दो कैपेसिटर है, मैं इसको C1 नाम दे देता हूं, इसको C2 नाम दे देता हूं. तो C1 by C2 का रेशियो क्या आ रहा है वो देख लो. इट इज 6/4, इट इज 3/2. राइट? टोटल चार्ज दोनों के सीरीज कॉम्बिनेशन में 30 होगा, 30 होगा, राइट? 30 माइक्रोकूलम का टोटल चार्ज है. तो चार्जेस स्प्लिट भी उसी रेशियो के अकॉर्डिंग होते हैं. सो यू शुड नो कि चार्जेस will also be, now since C is proportional to Q, I am just telling you how to do this, क्योंकि बेसिकली मैं इसका सॉल्यूशन रिटन फॉर्म में नहीं देने वाला हूं, मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं. कैपेसिटेंस इज प्रोपोर्शनल टू चार्ज. ओके, तो रेशियो ऑफ चार्ज शुड आल्सो बी 3/2. तो जो चार्ज का रेशियो है वो भी 3/2 होना चाहिए. इसका मतलब 30 माइक्रोकूलम में से 18 माइक्रोकूलम यहां जाएगा, ओके, और 12 यहां पे आएगा. तो 18/12, इज इट 3/2? यस. तो आई विल रिपीट दिस क्वेश्चन अगेन एंड विल टेल यू हाउ टू डू दिस क्वेश्चन ओरली. ये भी आपका जेई मेन 2019 का क्वेश्चन है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, राइट? तो हमको क्या करना है, आई टेल यू व्हाट इज टू बी डन. सो व्हाट यू नीड टू डू इज, I don't want you to solve this question at the first place. I want you to do this orally. Orally कैसे करते हैं समझ लो. I will just put down important points. Point number 1. All capacitors in series have same amount of charge. Same amount of charge. Okay, so therefore total charge on series combination of 6 microfarad and 4 microfarad and 4 microfarad is also 30 microcoulomb. Okay, right? This is what you need to understand. और लेफ्ट प्लेट राइट प्लेट मैंने समझा दिया. यहाँ पे लेफ्ट प्लेट पे नेगेटिव तो यहाँ पे पॉजिटिव, तो यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे भी नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव तो पॉजिटिव. मतलब राइट प्लेट पे तो नेगेटिव चार्ज होगा नहीं, राइट प्लेट्स पे पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज होगा. मतलब ऑप्शन ए एंड सी तो आउट ऑफ क्वेश्चन है. दिस इज हाउ यू आर सपोज्ड टू सॉल्व, राइट? क्योंकि दिस ट्रिक्स आर इंपॉर्टेंट इन जेईई नीट एग्जाम्स. तो ये पता होना चाहिए कि 30 माइक्रोकूलम है.
Okay. Third thing, right? Charges on left plates of all the capacitors will be negative, and on the right plates will be positive. I am writing all this just for you to understand how to do this orally. Okay. Now, ये हो गया. Then you should know, right? So next point was, next thing that you needed to know is, यहाँ तक ठीक है कि कहाँ पे नेगेटिव कहाँ पे पॉजिटिव. Then you should know also capacitance is proportional to Q, right? Now अगर मैं इस कैपेसिटर को C1 बोलता हूँ, इसको C2 बोलता हूँ, तो you know that Q1 by Q2 is C1 by C2, that is 6 by 4, that is 3 by 2. Therefore, charges Q1 and Q2 are in the ratio 3:2. Okay, ये बताना चाहिए. Therefore, charges on capacitance C1 and C2 are in the ratio 3:2. Right? Correct? Therefore, you will write down किसका किसका 3:2, 3:2 of total. Okay, so you should know. Therefore you can say, अभी टोटल चार्ज कितना था? टोटल चार्ज था 30, है ना? 30 था. सो अगर मैंने Q1 पे 18 डाल दिया, मतलब 6 माइक्रोफैरड पे 18 माइक्रोकूलम डाल दिया, और 4 माइक्रोफैरड पे 12 डाल दिया, तो रेशो is equal to 18 by 12, that is 3 by 2. Okay, so this is by logic you are supposed to solve. I can give you formula, but I don't want to give you formula here, because what I want is that when you read the question, अच्छा 30 minus 10 माइक्रोफैरड का जो कैपेसिटर का राइट प्लेट है पॉजिटिव 30. ओके, फिर क्योंकि ये सारे के सारे अल्टीमेटली सीरीज में है, तो इन दोनों का अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन को सिंप्लीफाई करूंगा तो ये भी सीरीज में आएगा. मतलब टोटल 6 और 4 कैपेसिटर जो है, माइक्रोफैरड कैपेसिटर जो है, इन पे टोटल 30 है, बट कैपेसिटर इज प्रोपोर्शनल टू चार्ज. तो 6 माइक्रोफैरड के कैपेसिटर पे 18 जाएगा. 18 क्यों जाएगा? रेशो C1 by C2 इट इज 3 by 2. तो चार्ज का रेशो भी 3 by 2 होना चाहिए. 18 और 12, 18 by 12 is 3 by 2. So I want you to do this orally. So I will not give you formula for this. Okay. Next question. 7 capacitors, each of capacitance 2 microfarad are connected. सब दो माइक्रोफैरड के कैपेसिटर्स है, are to be connected in a configuration to obtain an effective capacitance of 6 by 13 microfarad. मतलब total effective should be 6 by 13. Which of the following combination in the following figure will achieve the desired value? अब ऐसा है कि हमको दो माइक्रोफैरड के 7 कैपेसिटेंस दिए हैं, हमको चाहिए इफेक्टिव 6 by 13. तो कौन सा कॉम्बिनेशन देगा? I'll tell you only one basic thing. N capacitors of same capacity in parallel. पैरेलल कॉम्बिनेशन में एडिशन होता है, तो इट इज n into c. n capacitors of same capacitance will give you c by n, right? This is what you need to know. अभी ओरली कैसे होता है? ये 5 कैपेसिटर्स है, 1 2 3 4 5, बराबर? यस. हर एक कितना है? 2. तो दिस विल बी 2 into 5, है ना? टोटल 5 कैपेसिटेंसेस, ईच वैल्यू 2. तो ये 5 जो आपके पास पैरेलल में है,
दिस इज टोटल 10 माइक्रोफैरड। और ये जो दो सीरीज में है आपके पास, ये जो दो सीरीज में है, दिस इज 2/2, ओके, दिस इज 1 माइक्रोफैरड मतलब, एंड दिस इज 10 माइक्रोफैरड। नाउ यू नो कि ये 5 का पैरेलल कॉम्बिनेशन और ये 2 का सीरीज कॉम्बिनेशन ये वापस सीरीज में है, राइट? तो देन you have to solve this. So how do you solve this? It's again simple. CS equal to या फिर C equivalent equal to पहला, I mean if you remember of course ये याद होना चाहिए आपको, C1 into C2 upon C1 plus C2 ऐसा फॉर्मूला है, या फिर 1 upon CS भी लिख दिया तो भी चलता है, एक ही बात है, it's the same thing, it's one and the same thing, okay? So you need to know this is one and the same thing. तो आपको कैसा लिखना है आपके ऊपर है। तो C equivalent is 10 माइक्रोफैरड ऑफ कोर्स into 2, क्योंकि C1 into C2 अपन C1 plus C2, ये आ गया आपका 20/12, 20/12, नीचे 12 आ गया, नीचे 13 नहीं आया तो क्वेश्चन खत्म। 20/12 is 5/3, तो दिस इज नॉट द आंसर। गुड। अब यहाँ पे 3 आपके पास पैरेलल में है, तो CP विल बी 3 into 2 दैट इज 6 माइक्रोफैरड, राइट? और ये जो आपके पास और 4 है ये सीरीज में है। तो अब व्हाट इज हैपनिंग इज ये 6 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर और ये आपके पास टोटल 4 है, तो दिस विल बी 2/4, ऑलराइट? तो दिस इज 1/2, हाफ मतलब, राइट? फिर ये दोनों वापस से आपके पास सीरीज में आएंगे, तो क्या करोगे? C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C1 इंटू C2, C1 कितना 6, C2 कितना हाफ, अपॉन C1 प्लस C2, इसको सॉल्व करोगे, राइट? तो यू हैव टू सॉल्व दिस। So what I am doing is I am writing this answer option number B over here. So for the case of B, you will have finally, I mean the final answer equivalent, C equivalent is equal to CP into CS upon CP plus CS. Okay, so this is 6 into 1/2 upon 6 plus 1/2. 3 upon this is 12 plus 1 13/2, so this is 6/13 microfarad। आ गया हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। So you need to start doing this, you need to start doing this only now onwards, right? तो ऐसा उसको सॉल्व करना था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12th, in the circuit shown find C if the effective capacitance of the whole circuit is to be 0.5 microfarad। मतलब A और B पॉइंट के बीच में टोटल कैपेसिटेंस 0.5 अगर है तो ये C की वैल्यू फाइंड करनी है आपको। Again, this can be done orally, and remember one thing, we are solving for the time being all questions from JEE Main 2019. ये भी और ये भी, okay? तो you see, level of question is not that high. ऐसे क्वेश्चंस में क्या करना होता है? ऐसे क्वेश्चंस में पहला स्टेप है टू आइडेंटिफाई कौन से सीरीज में कौन से पैरेलल में। ये दोनों सीरीज में है, कैसे आइडेंटिफाई किया? हाउ डू आइडेंटिफाई सीरीज? अगर यहाँ पे करंट आया तो जितना करंट इस 2 में से जाएगा उतना ही करंट इस 2 में से जाएगा, क्योंकि करंट को स्प्लिट होने के लिए जंक्शन नहीं है। तो जब करंट सेम होता है तो मतलब वो दो कंपोनेंट्स सीरीज में होते हैं, तो वो ये दोनों सीरीज में है। So these two are in series. इन दोनों का सीरीज मतलब 2/2, मतलब ये 1 माइक्रोफैरड हो गया,
दिस इज 1. अब ये 1 और ये 1 दे आर इन पैरेलल. So these two ones are in parallel. Okay, you need to understand कि ये दोनों parallel में होंगे. If you want, I will draw diagram and simplify things for you. तो हम लोग simplified diagram draw कर लेंगे. तो आपके पास एक structure ऐसा है. Sorry for this. ओके, तो मैं ये बेसिक स्केलेटन कॉपी करके साइड में रख देता हूँ, काम में आएगा आगे. सो यू हैव, सी हियर, यू हैव 2 2 2 and 2 2 and 1 and 2. ऐसा है. ये ए पॉइंट है, यहाँ पे एक सी है जो फाइंड करना है, यहाँ पे एक 2 है, यहाँ पे एक 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे 1 है. All are in microfarad, by the way. So this is in 2 again, this is also 2, this is also 2. This is point B. First thing, these those, ये जो 2 है ये सीरीज में, ओके, ये 2 सीरीज में है. This is series and these two are parallel. मतलब सबसे पहले what I can do is, मैं without changing other things, okay, what you can do is, इसको हटाओ, इसको भी हटाओ, इसको भी हटाओ. You have a point A over here, you have C capacity, you have 2, you have 2 and you have another 2 here, क्योंकि ये सॉरी parallel combination 2 plus 2 is 4. तो okay, these two are parallel, तो 2 plus 2 is 4, क्योंकि पैरेलल में एडिशन होता है, पता होना चाहिए आपको. यहाँ पे 1 था तो ये आपका 1 है, और ये यहाँ पे जो 2 आपके पास सीरीज में थे, 2 और 2 के सीरीज में, मतलब ये भी 1 है. अब ये दोनों वंस, ये दोनों 1 and 1, they are in parallel. Okay, so they are in parallel, so you should know this now. मैं थोड़ा टाइम ज्यादा ले रहा हूँ आज, because circuit simplification, some students told me that they are not yet confident. So how to simplify, you will have to learn now. This is in parallel. Now if that's in parallel, what you can do is, parallel combination में ये अब हटा दो, 1 plus 1 will become 2, so this will become 2. Okay, parallel combination 2, this is B point. अब what you can do next is this. अब ये जो 2 और 2 है ये सीरीज में है, और ये 2 और 4 भी सीरीज में है. तो इन 2 और 2 का सीरीज इज 2 by 2. This is simple. 2 by 2 you already know is 1. Series combination of these two, what I can do is, इसको यहां से हटा देता हूं. Just let's fix it up over here. तो यहाँ पे अभी कैपेसिटर नहीं है, क्योंकि दोनों को कंबाइन कर लिया मैंने, 2 और 2 को सीरीज में, सीरीज कॉम्बिनेशन का 2 और 2 ये बन गया 1. ये 2 और 4 का सीरीज, 2 into 4 upon 2 plus 4, तो 8 by 6, 8 by 6 is 4 by 3. तो यहाँ पे भी I will remove this
I'll just write down 1 4/3 over here. Okay, and you will have only one here. Now it's like कि ये जो आपके पास 4/3 और जो 1 है that is in parallel. तो ये दोनों अब आपके पास आ गए पैरेलल में. ओके, सो दिस इज पैरेलल कॉम्बिनेशन. तो नाउ व्हाट यू कैन डू इज, इसको अब एकदम सिंप्लीफाइड तरीके से दिखा सकते हो आप बोल सकते हो सीधा सीधा ये ए पॉइंट, यहाँ पे बी पॉइंट. सो दिस इज ए, दिस इज बी. ए के बाद सी और ये 1 और 4/3 का एक इक्विवेलेंट लगेगा. दिस इज सी. 1 + 4/3, 1 + 4/3 क्योंकि पैरेलल में एडिशन होता है. 1 + 4/3 इट इज 7/3. तो ये 7/3 है. ओके, देयरफॉर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी, क्योंकि ये दोनों अब वापस से आ गए सीरीज में. तो यू विल हैव दिस एज C into 7/3 upon C plus 7/3. Okay, but what is given to you? उन्होंने बोला है कि ये equivalent capacitance between A and B is 0.5 microfarad if I am not wrong according to the question. कहाँ गया क्वेश्चन? ये रहा. क्या बोला उन्होंने अल्टीमेटली? 0.5 माइक्रोफेराड ये टोटल कैपेसिटेंस है. ओके, सो यू हैव टू राइट दिस. नाउ इसको सॉल्व करना पड़ेगा. सो दिस इज 7C/3 अपॉन ये आ जाएगा 3C + 7/3. कैंसल कैंसल. ओके, देन सॉल्व. दिस इज 0.5 is half. 0.5 is half. This is equal to 7C upon 3C plus 7. So this is 3C plus 7 equal to 14C, right? So 14C minus 3C is equal to 7. So 11C equal to 7. So C is equal to 7/11 माइक्रोफैरड. ये आना चाहिए, नहीं आया तो हमारा कहीं तो गलत हुआ. 7/11 ऑप्शन नंबर ए. तो हमारा कहीं गलत नहीं हुआ, हमारा आंसर ऐसा आएगा. ये ओरल हो सकता था, बट उसके लिए यू नीड अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस. तो प्रैक्टिस अगर आपकी होती तो पढ़ते पढ़ते ही समझ में आता है ये 2 और 2 सीरीज में है, ये एक आएगा, फिर ये एक और एक पैरेलल में है, तो टोटल यहाँ पे 2 आएगा. फिर ये 2 और 2 सीरीज में है तो यहाँ पे इक्विवेलेंट विल बी 1, तो ये 1 आ गया. फिर ये 2 और 2 पैरेलल में है तो ये 4 है, ये 4 और 2 सीरीज में है तो 2 × 4 / 2 + 4, 2 × 4 8, 8 अपॉन दिस इज 4/3. ओके, तो सॉल्व करते गए ये 4/3 और ये 1 पैरेलल में है तो टोटल 7/3 आएगा. तो 7/3 और C ये सीरीज में है. तो दिस इज हाउ यू कैन डू. In fact, this can be done orally only. But ठीक है, it's in the initial stage if you do not have that much of practice. So definitely, ultimately, I could have said कि ये पूरा structure यहाँ पे ये आपको 7/3 देने वाला है. ये 7/3 और ये C सीरीज में है, तो आपको पता है उसको कैसे सॉल्व करते हैं. You know already this. So this is how you are supposed to solve such questions. Next question, question number 13th. So now this is again of course from JEE Main 2019, क्योंकि फिलहाल मैं सिर्फ वही क्वेश्चन ले रहा हूँ. एंड ऑफ कोर्स कि एक अटेम्प्ट तो नहीं रहा होगा क्योंकि एक ही टॉपिक पे इतने क्वेश्चंस थोड़ा डिफिकल्ट लगता है ना. सो एनीवेज, a parallel plate capacitor with plates of area 1 meter square each are at a separation of 1 mm. तो एरिया ऑफ द प्लेट दिया है, D की वैल्यू दी है. इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स इज 100 न्यूटन पर कूलम. द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन ईच प्लेट इज. वेरी गुड एंड सिंपल क्वेश्चन. इफ यू रिमेंबर, ये प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर है, आपको ऑलरेडी पता है इसमें एक प्लेट नेगेटिव होता है, एक पॉजिटिव होता है. आई डोंट केयर विच इज नेगेटिव विच इज पॉजिटिव. आई कैन से दिस इज नेगेटिव और आई कैन से दिस इज पॉजिटिव.
तो ये नेगेटिव. आई डोंट केयर रियली. ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव. इफ यू रिमेंबर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जब हमने एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ देखा था, तो एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ के टाइम पे हमने दो इन्फिनाइट चार्ज्ड शीट्स के बीच के रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड किया था, राइट? करेक्ट. दैट turned out to be, if you remember, E equal to sigma by epsilon 0. मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर इज सिग्मा बाय एप्सिलॉन 0. दिस इज व्हाट यू नीड टू नो. ये आपको पता होना चाहिए. आपको चार्ज पूछा है, आपको ये पता होना चाहिए कि सिग्मा, क्योंकि यहाँ पे प्लेट्स मतलब एरिया के ऊपर चार्ज है, तो यू शुड नो दैट सिग्मा इज चार्ज पर यूनिट एरिया. Therefore, you will get electric field E as सिग्मा बाई, मतलब सिग्मा बाई एप्सिलॉन 0 था, तो सिग्मा की जगह पे मैं चार्ज Q डाल दूंगा, तो Q बाई A एप्सिलॉन 0 आएगा. दिस इज व्हाट यू आर गोइंग टू गेट. तो आपको मिल जाएगा Q इज इक्वल टू E A एप्सिलॉन 0. ओके, ये आपको मिलने वाला है. सो then charge Q is equal to A E A epsilon 0. ये आपको दिया है 100. एरिया ऑफ द प्लेट इज 1 मीटर स्क्वायर. डिस्टेंस की जरूरत पड़ेगी नहीं, बिकॉज वी डोंट नीड टू नो व्हाट इज डी. जरूरत ही नहीं है यहाँ पे. epsilon 0 इज 8.85 इंटू 10 पावर माइनस 12. तो ये 100 मतलब 10 पावर प्लस 2 और 10 पावर माइनस 12, तो 8.85 into 10 power minus 10 coulomb. Option number C. So if you look at the level of difficulty, it is not very difficult. It's nothing in reality. सिर्फ पता क्या होना चाहिए? What is the electric field between the two plates of capacitor? That's it. अगला question. Voltage rating of a parallel plate capacitor is 500 volt. If its dielectric can withstand a maximum electric field of 10 power 6 volt per meter, the plate area is 10 power minus 4 meter square. What is the dielectric constant if the capacitance is 15 picofarad? So again, a simple type of question. You know, C is equal to K A epsilon 0 by D. Okay, so this is something you need to know. हमें फाइंड क्या करना है? हमें what is being asked? Dielectric constant K. You are supposed to find out K. Capacitance दिया है, yes. Plate area do you know? No. You know electric field. Now, what you can do here is, इसको सॉल्व कैसे करेंगे? What you know is electric field is potential difference per unit length, मतलब V by D. This is important. This is important. ये आपको पता होना चाहिए. ऐसा मैं क्यों लिख रहा हूं? Because C is Q by V. This is Q by V. Okay. If you understand this, then you will be able to solve this. Otherwise, nothing doing. मैं एक बार वापस बताता हूँ क्या करना है. वोल्टेज रेटिंग, तो आई वुड लाइक टू स्टार्ट विथ क्या दिया है? वोल्टेज भी. वोल्टेज रेटिंग दिया है. इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है 10 पावर 6 वोल्ट पर मीटर. प्लेट एरिया दिया हुआ है 10 पावर माइनस 4 मीटर स्क्वायर. डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पूछा है और कैपेसिटेंस 15 पिको फैराड दिया हुआ है. आपको पूछा है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के. C इज इक्वल टू, अब ऑफ कोर्स एप्सिलॉन 0 की वैल्यू दी है, K A एप्सिलॉन 0 बाय D. इस पूरे क्वेश्चन में, मतलब इस फॉर्मूला में, what you do not know is D, but what you know is
E is equal to V by D, तो D is equal to V by E, क्योंकि हमको V पता है, हमको E पता है, तो मैं लिख दूंगा इसको K A epsilon 0 D is V by E. This is what I was saying. तो C equal to K A epsilon 0 E by V. हमारा टास्क है टू फाइंड आउट K, so K is equal to CV upon A epsilon 0 E. Do you know C? Yes. How much is that? It is 15 picofarad. 15 into 10 power minus 12. Do you know V? Yes. How much it is? 500. 5 into 10 power 2. Do you know what is area? Yes. 10 power minus 4. Do you know what is epsilon 0? Yes. So let me make some space for that. Okay. So this is 8.85 into 10 power minus 12 into E is 10 power 6. इसको सॉल्व करना है, that's it. So 15 into 5, 75. 10 पावर माइनस 10, नीचे आ गया आपका 10 पावर माइनस 16 और 10 पावर प्लस 6, तो 10 पावर माइनस 10 नीचे भी, और ये आ गया 8.85. कैंसल कैंसल, 75 अपॉन 8.85, रफली 75 by 9, रफली 75 by 9. अगर 72 by 9 होता तो कितना होता? 8. तो 8 के ऊपर जाएगा 8.5, आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर बी खत्म. तो कैलकुलेशंस भी आपको कंप्लीट नहीं करने हैं, आपको कैलकुलेशंस भी रफली करने हैं. So you're supposed to do approximate calculations over here. Okay, so this is how this question needs to be solved. तो ऐसा ही क्वेश्चन सॉल्व करना है, सिंपल था. नेक्स्ट क्वेश्चन, capacitor with capacitance 5 microfarad is charged to 5 microcoulomb. तो 5 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर चार्ज किया हमने 5 माइक्रोकूलम तक. If the plates are pulled apart to reduce capacitance to, new capacitance is 2 microfarad. Initial distance जो भी था d था, अब हमने प्लेट्स को दूर लेके गए so that the capacitance reduces to 2 microfarad. How much work is to be done? You see, work done always is nothing but change in potential energy. You should know this. क्या है कि दो प्लेट्स थे, ओके, इसमें हमने जब चार्ज स्टोर किया था तो कुछ वर्क डन हुआ, मतलब इसका कुछ पोटेंशियल एनर्जी है. ओके, फिर नाउ व्हाट वी वांट टू डू इज, हमको दोनों प्लेट्स को दूर लेके जाना है एक दूसरे से, मतलब वर्क हैज टू बी डन. तो नया कॉन्फ़िगरेशन, नए डिस्टेंस पे पोटेंशियल एनर्जी निकालो, मतलब फाइनल पोटेंशियल एनर्जी निकालो, एंड इनिशियल डिस्टेंस पे पोटेंशियल एनर्जी निकालो, दोनों को सब्ट्रैक्ट करो. सो वर्क डन W is change in potential energy, that is final minus initial, that is equal to, of course, पोटेंशियल एनर्जी या एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर के तीन फॉर्मूला सीखे हैं आपने. वन वाज हाफ CV स्क्वायर, हाफ CV स्क्वायर हमारे काम का नहीं है, क्यों? क्योंकि हमको V नहीं पता, राइट. दूसरा आपने सीखा था Q स्क्वायर बाय 2C, यस, क्योंकि Q पता है और C भी पता है. ओके, तो ये यूज करेंगे Q स्क्वायर बाय 2C. तो Q स्क्वायर बाय 2C डैश, C डैश वाई, C डैश बिकॉज फाइनल एनर्जी में फाइनल कैपेसिटेंस यूज होगा, माइनस Q स्क्वायर बाय 2C. तो Q स्क्वायर बाय 2 कॉमन 1 बाय C डैश माइनस 1 बाय C. ओके, तो नाउ बहुत बेसिक चीजें हैं दैट यू शुड नो हाउ टू डू सच क्वेश्चंस. दिस इज लाइक वेरी सिंपल थिंग. ओके, सो यू विल हैव दिस एज, let me make some space. So I need some space to write down things. Okay, just a minute.
Sorry for this space making thing, but I would like to do it on the same page. So yeah. Okay, now ये आपके पास जो कैपेसिटर की वैल्यू है वो डाल दो, q square by 2. Now you have q also. Okay, उसको मैं बाद में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा, राइट? और इफ यू वांट टू डू इट नाउ यू कैन डू इट नाउ, कोई इशू नहीं है. q is 5 माइक्रोकूलम. ओके, तो 5 का स्क्वायर 25 माइक्रो मतलब 10 पर माइनस 6 का स्क्वायर 10 पर माइनस 12 बाई 2. 1 बाई सी डैश. सी डैश कितना है? 2 माइक्रोफैरड, 2. और सी कितना है? 5 माइक्रोफैरड. माइक्रो मतलब 10 पावर माइनस 6 कॉमन निकाल लिया. तो कैलकुलेशंस यू हैव टू नो कि मैं क्या कर रहा हूँ. ये 10 पर माइनस 6 कहाँ से आया? वो माइक्रो का मैंने आ बाहर निकाल लिया. और 10 पर माइनस 12 कहाँ से आया? माइक्रोकुलम का स्क्वायर हो गया. तो 25 बाई 2 10 पावर माइनस 6 ऊपर बचेगा क्योंकि 10 पर माइनस 12 और नीचे का माइनस 6. ये आ जाएगा 5 माइनस 2 अपॉन 5 इंटू 2. ओके, सो ये आपके पास आ गया 2 जा 5 जा. तो 5 बाई 2 इंटू 10 पावर माइनस 6, 3 बाई 2. This is equal to 15 by 4, okay, into 10 power minus 6. 15 by 4, 4 से थोड़ा छोटा, 3.75 है ना, क्योंकि 16 by 4 is 4, 15 by 4 is slightly smaller than 4. So you have option number B, 3.75 into 10 power minus 6 joule is the work done. Okay, so this is 3.75 into 10 power minus 6 joule. This is how you are supposed to solve this particular question. ऐसा इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था. तो again, as you see, these questions are not very difficult. और ये जेई के क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व कर रहे हैं. So it's extremely simple. All right, so let's stop here for today. We'll continue with more questions in the next session.